Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to lecture number 9 of CSC 291 Software Engineering 1. In today's lecture, today is the last of the series of lecture on requirement engineering, and in today's lecture we will not only finish what is left of requirement engineering process, but we'll also summarize whatever we have covered up to today's lecture on requirement engineering. So in today's lecture we'll cover this whole big topic and we will finish this requirement engineering topic. And so let's see, quickly we will recap and what we have covered in the previous lecture. In the previous lecture we covered, or we finished, the elaboration phase. Elaboration phase is one of the most detailed phases of requirement engineering. We saw that this is the first technical representation of our system, and it included various kinds of modeling. Okay? The first kind of modeling that we covered in elaboration phase was scenario-based modeling. Then we covered flow-based modeling, class-based modeling, and in the last lecture we discussed behavioral modeling. In behavioral modeling we discussed two kinds of diagrams. Number one was state diagrams and number two was sequence diagrams. In the state diagram हमने ये पढ़ा कि हम state diagram हर class की एक separate state diagram बन सकती है, ठीक है, और विद इन अ स्टेट डायग्राम हम उस क्लास की जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं we represent all those possible states as rounded rectangles. So for example, if we have a class, और हम एक, let's say हम कहते हैं हमारी एक क्लास है XYZ, ठीक है, तो स्टेट डायग्राम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि इस क्लास की जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं उनको हम एज राउंडेड रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंट कर देंगे. तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारी क्लास की A, B, C और D स्टेट्स हैं, ठीक है. एंड देन नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इन स्टेट डायग्राम कि एक ऑब्जेक्ट या एक क्लास डिफरेंट स्टेट्स में क्यों मूव करती है, बिकॉज ऑफ एन इवेंट, ठीक है. तो वी आइडेंटिफाई एन इवेंट जो कि एक ट्रिगर करता है इस इन जंप बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल जो भी जंप होगी उसकी बेसिस के ऊपर जो भी ट्रांजिशंस होती हैं वी ट्राई टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम. whatever possible transitions are there, we try to record all the transitions कि आपका एक ऑब्जेक्ट किन किन स्टेट्स में कैसे कैसे जंप कर सकता है, ठीक है. दिस इज व्हाट वी कवर्ड इन द स्टेट डायग्राम. इन द सीक्वेंस डायग्राम वी सॉ कि वी गेट मोर इन्फॉर्मेशन देन स्टेट डायग्राम्स, ठीक है. स्टेट डायग्राम तो सिर्फ एक क्लास की डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान जंप को रिप्रेजेंट करती है, वेयर एज इन अ सीक्वेंस डायग्राम वी बेसिकली ट्राई टू मॉडल डिफरेंट क्लासेस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लास XYZ, वी हैव क्लास ABC, हमारे पास डिफरेंट जो भी क्लासेस हैं, हम एक क्लास की तो डिफरेंट स्टेट्स को इसके अंदर मॉडल करते हैं, लेकिन अगर किसी एक स्टेट को कोई काम पूरा करने के लिए किसी दूसरी क्लास के पास जाना है तो वी ऑल्सो रिकॉर्ड दैट, ठीक है. और हम ये भी देखते हैं कि वो काम कितनी देर में वो क्लास करके देती है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेक्टेंगल. अगेन जो कि मैं आपको आई हैव बीन सेइंग फॉर पास्ट 2-3 लेक्चर्स कि we do not worry about the notations and details of these diagrams because we will have separate lectures on use cases, class-based modeling, data flow modeling, sequence diagrams, state diagrams, where we will cover the UML notation of these diagrams in detail. Okay, and we'll do some more examples. So these are the two things that we covered in behavioral modeling, जो कि आपके system का behavior को model करती हैं on the basis of event that are generated by actors. Okay, the second thing that we covered in the last lecture was negotiation, ठीक है. हमने देखा कि negotiation is one of the main phases of requirement engineering, और negotiation important क्यों है, ठीक है, क्योंकि whenever you meet the customer आपसे बहुत सी चीज़ें मांगेगा, ठीक है. Customer can ask you for many things and most of the things you have to include in the solution, but there are some things which are just wishes of the customer, या वो ऐसी चीज़ें जो कि conflicting है, या वो विद इन द रिसोर्सेज जो कि आपने सेट किए, टाइम, कॉस्ट और स्कोप, उसके अंदर वो पूरे नहीं हो सकता, ठीक है. तो यू नीड टू टेल द कस्टमर कि जी ये वाले काम मैं नहीं कर सकता, ठीक है. तो दैट कम्स इन निगोशिएशन, और निगोशिएशन करने के लिए हमने देखा कि यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. आपको हर रिक्वायरमेंट के रिस्क्स को एनालाइज करना है, आपको हर रिक्वायरमेंट, आपको अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को रैंक करना है, आपको हर रिक्वायरमेंट की रिसोर्स और टाइम एस्टिमेशन करनी है कि इसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा. Unless and until you do not do it, you are not in a position to negotiate with the customer, ठीक है. और finally we saw कि when you negotiate with the customer, तो you have to give lot of importance to customer's opinion, and you need to tell customer कि you are very important part of our overall system. So आपको लेकिन कस्टमर को रियलाइज कराना है कि जी ये वाला हम काम करेंगे ना तो शायद आपका मेन काम ना हो सके. तो इट्स बेसिकली एन आर्ट एंड यू नीड टू मैप आउट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी व्हेन यू गो फॉर नेगोशिएशन. So this was what we covered in the last lecture.
Now let's see what we have in store for today's lecture. As I already said, in today's lecture we will finish the topic on requirement engineering, and there are 4 phases left of the requirement engineering process जो हमने शुरू में आपको मैं डिस्कस करता रहा हूँ. इंसेप्शन से हमने स्टार्ट किया था, we covered इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलेबोरेशन, और हमने नेगोशिएशन भी कवर कर लिया. So today we will start with specification. ठीक है, स्पेसिफिकेशन मीन्स कि आपने जब रिक्वायरमेंट्स एलिसिट भी कर ली, आपने उनको एलेबोरेट भी कर लिया, अब आप रिक्वायरमेंट्स को लिखेंगे कैसे. ठीक है, हाउ यू एक्चुअली फॉर्मेट, हाउ यू एक्चुअली राइट द रिक्वायरमेंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. ठीक है, दिस इज व्हाट वी विल कवर इन स्पेसिफिकेशन. देन वी विल सी व्हाट वैलिडेशन इज. ठीक है, एज आई थिंक द वर्ड सजेस्ट, आपको इससे ये तो पता लग ही गया होगा कि व्हेन यू वैलिडेट समथिंग तो यू ट्राई टू मैच वट एवर यू डिसाइडेड बिफोर यू एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग समथिंग. जिस फॉर एग्जाम्पल कस्टमर से आप जब रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की बात होती है तो यू एक्चुअली गो टू द कस्टमर एंड यू टेल द कस्टमर कि दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू वांट. ठीक है, इज दैट व्हाट यू वांट. सो यू बेसिकली आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द कस्टमर कि दिस इज व्हाट वी थिंक दैट यू वांट, इज दिस व्हाट यू वांट. यानी कि कस्टमर आपको जब कह देते हैं हाँ जी यही मुझे चाहिए, तो योर रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली वैलिडेटेड. ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट अगर वैलिडेट ना हुई हो तो व्हेन यू एक्चुअली गो एंड डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि कस्टमर आपसे कह सकते हैं नहीं जी मुझे तो ये भी चाहिए था. सो वैलिडेशन इज वन ऑफ द की फेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. देन द थर्ड थिंग दैट वी कवर टुडे इज रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट. ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम इसके अंदर रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स देखेंगे कि इसका फायदा क्या होता है और रिक्वायरमेंट्स हम मैनेज ही क्यों करते हैं. जब हमने लिख भी नहीं है, हमने इतना काम कर लिया, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज रिक्वायरमेंट्स. एंड फाइनली वी विल समराइज द ओवरऑल कि हमने क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ी हैं. वी विल जस्ट हैव अ समरी ऑफ दिस टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक जो है पिछले 3 या 4 लेक्चर से वी आर टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. सो वी विल जस्ट हैव अ समरी ऑफ द ओवरऑल टॉपिक एंड सी हाउ व्हेन वी डिस्कस ऑल द थिंग्स टुगेदर, तो आपको यू विल रियलाइज कि हाउ एवरीथिंग फिट्स टुगेदर. ओके जी, सो एज आई टोल्ड यू टुडे वी हैव कवर्ड दिस फार. ये 4 फेजेस हम अपनी कर चुके हैं. आज के लेक्चर में विल स्टार्ट विद स्पेसिफिकेशन. ठीक है जी, ओके जी. स्पेसिफिकेशन होती क्या है? एज आई सेड कि आपने रिक्वायरमेंट्स लिस्ट भी कर ली, आपने रिक्वायरमेंट एलेबोरेट भी कर ली. अब जब स्पेसिफाई करने जा रहे हैं तो दिस इज एक्चुअली द फाइनल वर्क प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर. ठीक है, यानी कि आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी जब भी आपने कोई सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट किया होगा कि SRS लिख दें. SRS क्या होती है? SRS इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ठीक है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स तो आप पहले दिन से गैदर करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जांपल आपको आज मैं एक प्रोजेक्ट दूं, यू विल स्टार्ट गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम टुडे. ठीक है, लेकिन देयर इज अदर डेडलाइन जिसको हम कहते हैं कि जी आज अब आपने SRS जमा करानी है. तो ये जो SRS होती है दैट इज द स्पेसिफिकेशन. ठीक है, यानी कि वट एवर यू कीप ऑन डूइंग फॉर 2-3 मंथ्स, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें आप मुझे लिख के दे देते हैं कि जी मैं ये करने जा रहा हूँ. ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली द स्पेसिफिकेशन. ठीक है, और ये जिस तरह सेकंड लाइन इट सेज कि इट इज नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. ठीक है, दिस थर्ड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस डॉक्यूमेंट दैट यू प्रोड्यूस, जिसको हम SRS कहते हैं, ठीक है, इट बेसिकली सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर द subsequent software. This line is very important और this word is very important कि ये हमारी बुनियाद है जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है. ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी बुनियाद है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये कस्टमर के लिए भी है कि कस्टमर को भी पता है जी ये चीज़ मुझे ये इसने बनाकर देनी है. ठीक है, so this is a very key document and what it describes basically the function and the performance of a computer based system. ठीक है, ये 2 चीज़ें बताती है. एक तो ये बताएगी कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ वेबसाइट तो आपकी वेबसाइट क्या क्या बताएगी. इट बेसिकली अगर इफ इट्स ऑनलाइन शॉपिंग सोल्यूशन जो आपने किसी कस्टमर के लिए बनाया है तो वो कस्टमर को अलाउ करेगी कि लोग आके आपकी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स खरीद सकें. ठीक है, ये फंक्शनैलिटी होगी. लोग अपने अकाउंट्स बना सकें, लोग अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी का स्टेटस देख सकें. सो लोग अपना लॉगिन को ऑथेंटिकेट कर सकें. ठीक है, और मे बी फॉर योर एम्प्लॉइज आप देख सकते हैं कि कस्टमर ने कितने ऑर्डर प्लेस किए. तो दीज आर द फंक्शनैलिटीज. इस तरह की फंक्शनैलिटी की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. तो you in an SRS you write functional requirements and then you also write the performance requirements. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है वो 24 घंटे फंक्शनल होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज अ परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट. ठीक है, फिर आप कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट के अंदर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट के अंदर प्रॉपर बैकअप होना चाहिए. तो इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको हम कहते हैं परफॉर्मेंस या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं. तो SRS के अंदर इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स.
और फाइनली हम जिस तरह इट फॉर्मलाइजेस द इंफॉर्मेशनल, फंक्शनल एंड बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर इन बोथ ग्राफिकल एंड टेक्सचुअल फॉर्मेट, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अभी पीछे देखा था जो हमने डिफरेंट तरह की एलेबोरेशन फेज के अंदर वी हैव डन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडलिंग, ठीक है। हमने यूज केसेस भी बनाए, वी डिस्कस्ड DFDs, वी डिस्कस्ड स्टेट डायग्राम्स, वी डिस्कस्ड सीक्वेंस डायग्राम, वी डिस्कस्ड क्लास डायग्राम्स। अब ये जितनी भी तरह की हमने डायग्राम्स पढ़ी हैं, ठीक है, ये कहाँ जाती हैं? दे बिकम पार्ट ऑफ दिस SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक तो आपकी रिक्वायरमेंट्स के SRS के अंदर टेक्स्ट होता है जिसके अंदर आपने लिखी होती है कि जी ये 100 रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आप ये वाली डायग्राम्स भी उसके अंदर इंक्लूड करते हैं क्योंकि दे एक्चुअली हेल्प यू टू एलेबोरेट द सॉल्यूशन, ठीक है। ये आप कस्टमर को भी जब दिखाते हैं तो कस्टमर की भी अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट के बारे में क्लियर हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस SRS डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, तो टिपिकल आपके जो रिक्वायरमेंट्स SRS डॉक्यूमेंट होता है उसके क्या कंटेंट्स होते हैं? इट बेसिकली हैव ऑल द रिक्वायर्ड स्टेट्स एंड मोड्स, यानी कि आपके प्रोडक्ट किन किन स्टेट्स और मोड्स के अंदर जा सकती है, यू नीड टू रिकॉर्ड दैट। यू हैव द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट ग्रुप बाय कैपेबिलिटीज, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को नॉर्मली ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिस तरह आपकी अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं उसके अंदर आप उसकी भी सब कैटेगरीज बना देते हैं कि फॉर एग्जांपल जितनी भी ऑथेंटिकेशन रिलेटेड फंक्शनैलिटी है वो आप एक हिस्से में डाल देते हैं, जितने भी यूजर से रिलेटेड फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जांपल यूजर का अकाउंट मेंटेन करना है, उसका बैलेंस मेंटेन करना है, उसके ऑर्डर की हिस्ट्री मेंटेन करनी है, आप कहेंगे जी ये सारा काम एक अलहदा, क्योंकि दिस इज ऑल रिलेटेड टू यूजर, ठीक है। तो आप फंक्शनैलिटी वाइज भी अपनी रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट को पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है। व्हाई यू डू इट? ताकि दिस हेल्प्स यू अ लॉट, ठीक है। जिस तरह जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फंक्शनल बेसिस के ऊपर ग्रुप कर लेते हैं तो इट हेल्प्स यू इन इम्प्लीमेंटेशन। जब आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर होते हैं तो आपको पता लग जाता है कि यार ये वाला जो सारा ग्रुप था ये एक फंक्शन से रिलेटेड था और ये जो दूसरा ग्रुप है ये इस फंक्शन से रिलेटेड है, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट व्हेन यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग योर सोल्यूशन। फिर इसके बाद यू हैव द एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल GUI की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। कस्टमर आपसे कहता है जी मुझे 3-6 बटन चाहिए पहली स्क्रीन के ऊपर, मुझे लॉगिन चाहिए, मुझे ये चाहिए कि अगर किसी बंदा कोई रजिस्टर्ड यूजर ना भी हो तो वो मेरी वेबसाइट के थ्रू को ब्राउज कर सके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सो वट एवर द कस्टमर वांट्स, आपकी जो एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स है यू ऑल्सो पुट दोस देयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की इंटरनल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स आप डाल देते हैं, उसकी डाटा रिक्वायरमेंट्स भी डाल देते हैं कि फॉर एग्जांपल डाटा आपने स्टोर करना है, वेदर किस तरह से स्टोर करना है, आपने डाटा का बैकअप कितना रेगुलरली लेना है, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। फिर आपकी आ जाती हैं जिनको हमने अदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कह दी, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। यू हैव योर सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, एनवायरमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, क्वालिटी, पर्सनल, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, यानी कि एवरीथिंग बिकम्स पार्ट ऑफ दिस SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है। जिस तरह ये जो सेफ्टी है, अब सेफ्टी के अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सेफ्टी के अंदर आपके डाटा का भी सेफ्टी आ जाती है कि आपने अपने प्रोडक्ट का बैकअप कैसे लेना है, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी के अंदर आ जाता है कि आपने यूजर्स की ऑथेंटिकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग करनी है, दैट वाज पार्ट ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इसी तरह आपकी जो प्राइवेसी है वो आपका डाटा अगर आपका बैकअप लेते हुए कितना प्राइवेसी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। या आपका जब डाटा स्टोर कर रहे हैं तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करना है, नहीं करना, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर अगर आपको हार्डवेयर भी अपने सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करना है तो दैट आल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ दिस SRS डॉक्यूमेंट, यानी कि एवरीथिंग। और अगर आपने कम्युनिकेशन भी देनी है, यानी कि आपने पूरा सोल्यूशन देना है जिसके अंदर उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तो नीड टू प्रोवाइड दैट एज वेल, so that also becomes part of this SRS document. So it not only includes the functionalities your software should provide, it also includes all the non-functional requirements, and it can include hardware, communication, everything. You know, अगर आपको पूरा एक solution दे रहे हैं तो it basically has everything in the software requirement specification document. और it also has design and implementation constraints. For example, customer कुछ assumptions डाल देता है आपके ऊपर या constraint डाल देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स भी डाल सकता है, तो कहता है कि जी आपने ये सोल्यूशन मुझे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर बना के देना है, ठीक है। नाउ दिस इज अ कंस्ट्रेंट एंड देन इट बिकम पार्ट ऑफ द SRS डॉक्यूमेंट, ठीक है। कि आपका ये टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आपको अगर वो कहे कि जी मुझे ओपन सोर्स एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए तो मे बी यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन जावा, ठीक है। और डेटाबेस आप PostgreSQL यूज कर सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ओपन सोर्स और फ्रीली अवेलेबल। Whereas if you implement the solution in any other technology which is not open source, तो customer might say कि जी I don't want it, ठीक है। So these things they become part of this software requirement specification document, जिसके अंदर आप एक एक चीज स्पेसिफाई कर देते हैं कि this is what the customer asked me to do. Okay जी. Other than that, it has qualification provisions to ensure each requirement has been met, ठीक है। यानी कि आप अपने जो आपके requirements को आप टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, that also becomes part of this requirement specification document. और आखिर में जो चीज़ है वो हमसे कहते हैं requirement traceability. We will cover it in more detail when we discuss requirements management.
हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है एंड व्हाई इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड इन एसआरएस और व्हाई इट कैन बी इंक्लूडेड इन एसआरएस का क्या फ़ायदा होता है। विल सी इन मोर डिटेल कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है व्हेन वी डिस्कस रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। ठीक है जी। सो फाइनली जस्ट टू समराइज कि आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इट इंक्लूड्स द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इट माइट इंक्लूड एनी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू हैव टू प्रोवाइड विद द प्रोडक्ट। ठीक है, इट बेसिकली इंक्लूड्स एवरीथिंग। ओके जी। जनरली यू कैन फाइंड द कंटेंट्स, IEEE की एक टेम्पलेट है जो कि विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग द SRS डॉक्यूमेंट and these table of contents they are basically adapted from that IEEE standard for SRS। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, जब आपका आपके बेसिक हिस्सों में कुछ में डिवाइड हुआ हुआ है आपका SRS डॉक्यूमेंट। इट हैज़ इंट्रोडक्शन, इट हैज़ जनरल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड देन यू हैव अपेंडिसेस जिसके अंदर आप इनको और डिटेल इसके अंदर डाल सकते हैं। सो एज आई वाज सेइंग कि IEEE का सर्टेन स्टैंडर्ड है जिससे हमने ये अडाप्ट किया हुआ है। और अगर आप देखें जो इसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हुआ है, द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन वी हैव द जनरल डिस्क्रिप्शन एंड देन वी हैव सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और देन यू कैन हैव इंडिसेस। जो आपके टेबल ऑफ इंट्रोडक्शन है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट। सबसे पहला यू हैव पर्पस, ठीक है, कि आपके इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है। ठीक है, जिस तरह आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब लिखने जाते हैं तो यू नीड टू राइट द पर्पस कि जी इसका मकसद ये है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने जा रहे हैं। देन यू राइट द स्कोप। ठीक है, स्कोप का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या कवर करेगा। ठीक है, और एंड देन यू हैव डेफिनेशंस, एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशन इफ यू इंटेंड टू यूज एनी एब्रिविएशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हार्डवेयर के लिए HW का वर्ड यूज करना चाह रहे हैं या H/W, तो यू विल राइट दैट एज एन एब्रिविएशन। ठीक है, आप लिख देंगे कि जी दिस इज व्हाट आई मीन बाय दिस लाइन। ठीक है, अगर आप ERP बना रहे हैं और आप ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पूरा बार बार नहीं लिखना चाह रहे, आप ERP लिखते हैं तो यू नीड टू राइट दैट एज वेल। ठीक है, आप लोग वर्ड्स को या टर्म्स को डिफाइन भी कर सकते हैं कि इस लफ्ज़ का इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मतलब होगा। तो यू नीड टू गिव अ लिस्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशंस और एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशंस। देन यू कैन आल्सो इंक्लूड सम रेफरेंसेस। जिस तरह आप कोई स्टैंडर्ड है, इंडस्ट्री का कोई स्टैंडर्ड है जो कि आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसका भी रेफरेंस डाल सकते हैं कि दिस इज़ व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि हम इस तरह से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो आपको वो रेफरेंसेस भी देने। ठीक है, एंड देन यू डू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द दिस होल डॉक्यूमेंट। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो इंट्रोडक्शन है दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ दिस SRS डॉक्यूमेंट, दिस इज नॉट इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज़ इन अ वे इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट एज वेल, लेकिन इसके अंदर हम वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उन चीज़ों की डेफिनेशंस क्या हैं। अगर कोई चीज़ें एब्रिविएशन है तो एब्रिविएशन का क्या मतलब है। अच्छा जी, जब आप नाउ जो सेकंड इसका आपका मेन सेक्शन होता है उसे हम कहते हैं जर्नल डिस्क्रिप्शन। जर्नल डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या क्या बता रहे हैं, यू आर टेलिंग योर प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, you are telling your product functions, you are telling user characteristics, general constraints and assumptions and dependencies। अच्छा, इसके अंदर आप अपने सोल्यूशन को अपने बताना शुरू कर दिया। आपने बता दिया कि जी आपकी प्रोडक्ट कैसी होगी, प्रोडक्ट के अंदर मेन फंक्शंस क्या होंगे। ठीक है, आपके जो यूजर्स हैं यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आपके जनरल कंस्ट्रेंट्स क्या हैं आपके सोल्यूशन के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट नहीं है, आपकी प्रोडक्ट नहीं चल सकती, तो दैट इज अ कंस्ट्रेंट। ठीक है, और आपकी डिपेंडेंसीज क्या हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी और सोल्यूशन के साथ जाके इंटीग्रेट होना है और आप कहते हैं जी वो सोल्यूशन नहीं चल रहा, तो शायद आपका सोल्यूशन भी ना चले, तो यू नीड टू टेल ऑल दोस थिंग्स कि इसकी डिपेंडेंसीज किस चीज़ के ऊपर है और इसकी वट एवर द कंस्ट्रेंट्स आर देयर ऑन योर प्रोडक्ट, यू नीड टू राइट देम डाउन इन दिस जनरल डिस्क्रिप्शन सेक्शन। देन कम्स द सेक्शन वेयर यू एक्चुअली स्टार्ट स्पेसिफाइंग और राइटिंग दोज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, उसके अंदर अगर आप देखें तो वी हैव 3 मेन सब सेक्शंस। सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज ऑन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, द सेकंड फेज इज डिजाइन कंस्ट्रेंट्स और द सेकंड सब सेक्शन इज डिजाइन कंस्ट्रेंट्स एंड द थर्ड वन इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो आई गेस दे आर वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई कि आप इसके अंदर आप बड़ी क्लियरली बता सकते हैं। जिस तरह हमने वो HR मैनेजमेंट वाला सोल्यूशन डिस्कस किया था, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी कि सबसे पहली क्या है कि एक HR मैनेजर आके लॉगिन कर सकता है, HR मैनेजर आके रिपोर्ट्स जनरेट कर सकता है, जो दूसरे एक्टर्स हैं वो आके अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस। ठीक है, और जो इसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी वो फॉर एग्जांपल ये हो सकती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फंक्शनल होना चाहिए, आपको डेली अटेंडेंस का बैकअप अपने सिस्टम का लेना है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो शायद सिक्योर होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेड भी हो सकती है कि आपसे कस्टमर कहे कि जी मुझे ओपन सोर्स के अंदर चाहिए, दैट इज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, और मतलब ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और फॉर एग्जांपल एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती है कि
द सोल्यूशन शुड बी एबल टू हैंडल मल्टीपल लॉगिन्स एट द सेम टाइम। जिस तरह मल्टीपल लोग अगर आके बायोमेट्रिक आपने 5-6 लगाए हुए हैं और वो 5-6 लोगों पे एट अ टाइम डिफरेंट लोग आके अटेंडेंस लगा देते हैं, तो दिस इज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एज वेल कि मल्टीपल इनपुट्स को भी हैंडल करना चाहिए। तो यू कैन बेसिकली इंक्लूड, सो व्हेन यू से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप फंक्शनल आप कैटेगरीज बना के रिक्वायरमेंट्स की उनको कर देते हैं। और अगर आप ये देखें कि विद इन दीज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वी हैव दो सब कैटेगरीज, तो एक सब कैटेगरी के अंदर यू कैन हैव मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स। जैसा मैंने आपसे कहा था, वी ट्राई टू ग्रुप द रिक्वायरमेंट्स टुगेदर। जब आप इन रिक्वायरमेंट्स को ग्रुप करते हैं तो इसका फायदा क्या होता है कि इसका फायदा ये होता है कि जब भी आपकी एक रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज आती है तो आपको पता लग जाता है कि यार, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के अंदर चेंज दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना। कस्टमर वुड कम बैक एंड से कि जी नहीं, ये चीज़ इस तरह से नहीं, इस तरह से कर दें, ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो व्हेन यू ग्रुप रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटीज, तो उसका फायदा क्या होता है कि कस्टमर आपके पास कभी भी आ सकता है और ही वुड कम एंड ही वुड से कि जी ये रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं। और अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को ग्रुप करके लिखा होगा तो आपको ये आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि जो चेंज आई है इससे मेरे इस बाकी ग्रुप को तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ग्रुपिंग द रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटीज, ठीक है। तो दिस इज जनरली अ टेम्पलेट ऑफ एसआरएस। और ये अपेंडिक्स का जो सेक्शन है इसके अंदर आप वो सारी जो डायग्राम्स आपने बनाई थी यू कैन इंक्लूड देम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैव मेड यूज केसेस, यू हैव मेड क्लास डायग्राम्स, यू हैव मेड डाटा फ्लो डायग्राम्स, यू हैव मेड सीक्वेंस स्टेट डायग्राम्स, ऑल दोस थिंग्स दे कैन बी इंक्लूडेड इन द अपेंडिसेस। लेकिन वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट इन वन ऑफ द लेक्चर्स, कि the purpose of SC is not to make all the possible diagrams। यानी कि अगर आपको 10 डायग्राम्स के नाम आते हैं ना, तो इस SC का मकसद ये नहीं है कि आपको 10 की 10 बना दें। Each diagram should help you understand or should help you partition your system in a new way। यानी कि आपको अगर कोई डायग्राम नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, ठीक है, तो इट्स यूजलेस टू मेक दैट डायग्राम। यानी कि एवरी डायग्राम शुड सर्व अ पर्पस। जिस तरह यूज केस आप बना रहे हैं उससे आपको यूजर्स का सिस्टम के साथ इंटरेक्शन का पता लग रहा है। डाटा फ्लो डायग्राम आप बना रहे हैं तो उसमें आपको डाटा के फ्लो का पता लग रहा है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका जो सोल्यूशन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ही नहीं, तो उसके अंदर क्लास बेस्ड मॉडलिंग का यू डोंट नीड टू डू इट, ठीक है। तो बेसिकली यू नीड टू रियलाइज कि कौन से केस के अंदर आपको ये डायग्राम चाहिए या नहीं चाहिए। जिस तरह हमने एक्टिविटी डायग्राम पढ़ी थी, अब आप एक्टिविटी डायग्राम बनाने को हर यूज केस की बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्टिविटी डायग्राम का फायदा क्या है कि इफ द यूजर कैन डू मल्टीपल एक्शंस देन यू डू मेक एन एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। अदरवाइज यू डू नॉट नीड टू मेक एन एक्टिविटी डायग्राम। अगर यूजर के पास यूजर इज नॉट डूइंग मल्टीपल थिंग्स और यू नो देयर इज अ डिसीजन पॉइंट इन अ interaction of the user, then you make activity diagram, otherwise you do not need to make an activity diagram. So this is another example कि आप हर use case की activity diagram ना बनाएं unless and until आपको पता है कि इस use case के अंदर user को decision points आएंगे, ठीक है। तो you need to keep in mind कि जब आप diagram बनाएं तो every diagram should give you some new information, otherwise you do not need to make it. We have just covered the specification phase. Specification के अंदर हमने देखा है कि we write the functional requirements, we write the non-functional requirements, and if we need to provide any infrastructure with the project, for example any hardware, any communication, so we also specify those things in the specification. And not only that, if there are any constraints, for example customer has said कि he want an open source solution and he has said कि जी आपने जो solution बना के देना है, for example वो Java के अंदर बना के देना है, PostgreSQL के अंदर बना के देना है, या if you're making a mobile application और customer says that the application should run only on, he wants an application only for iOS, then these are the constraints that you need to write. So everything needs to be written down in the software requirement specification document. और एक और चीज़ हमने देखी कि requirement specification के अंदर we do not only write the requirements in the textual format, but we should also write the requirements ना सिर्फ हमें टेक्सचर फॉर्म में लिखनी है, बट जो डायग्राम्स हमने डिफरेंट डिस्कस की थी, जिस तरह यूज केसेस, DFDs, क्लास डायग्राम्स, एनी डायग्राम दैट वी अंडरस्टैंड कि दैट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द सोल्यूशन और द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, तो वी इंक्लूड दोज डायग्राम्स इन द SRS डॉक्यूमेंट. सो द नेक्स्ट फेज दैट विल कवर इज द वैलिडेशन. कि हमने वैलिडेशन में पहली बात तो ये, हम वैलिडेशन होती क्या है, क्यों करते हैं, ठीक है, और वैलिडेशन कैसे करते हैं. ओके जी. ड्यूरिंग द वैलिडेशन, the work products produced as a result of requirement engineering are assessed for quality. ठीक है. तो पहली चीज जो हमारा काम है वैलिडेशन के अंदर is basically internal. कि whatever we have written, for example हमने requirements लिखी हैं, तो we need to basically look at each requirement. हमें देखना है कि इसमें ambiguity तो नहीं है, ठीक है. और if something is not clear, तो we need to identify that. कि for example requirement 2 और 3 जो हैं ये clear नहीं है, ठीक है. तो we need to clearly write it down. Similarly, if we have made some diagrams और उसके अंदर यूजर का for example we have made a use case diagram, ठीक है, और इसमें यूजर का इंटरेक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है,
और इफ देयर इज समथिंग मिसिंग विच समबडी हैज आइडेंटिफाइड, तो यू नीड टू नोट इट डाउन कि जी ये चीज़ भी हमें क्लियर करनी है, ठीक है. सो द स्पेसिफिकेशन इज एग्जामिन टू इंश्योर द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है. नंबर 1 इज कि all the software requirements have been stated unambiguously. This is the most important thing, क्योंकि if a requirement is ambiguous, ठीक है, तो उसका हर कोई अपना मतलब लेगा, ठीक है. And you do not want that, क्योंकि जब आप कस्टमर को कोई चीज़ दिखाने के लिए लेके जाएंगे और अगर कोई ambiguous requirement थी तो कस्टमर can take benefit of that, ठीक है. तो you do not want that as a requirement engineer. You want every requirement to be as clear as possible, ठीक है. Second thing that you would check for quality in those requirements is for inconsistencies, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने 2 रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं जो कि एक ही शायद फंक्शन से रिलेटेड थी और वो दोनों इनकंसिस्टेंट है. एक कह रही है जी इस काम को इस तरह करना है, दूसरी कह रही है इस काम को इस तरह से करना है. नो, यू डू नॉट वांट इनकंसिस्टेंसीज इन योर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, सो यू नीड टू रिजॉल्व दैट. एंड इफ यूर देयर एनी omissions एंड एरर्स, यू नीड टू फिक्स दोस. अगर कोई चीज़ मिस हुई है या कोई चीज़ गलत है तो यू नीड टू नोट इट डाउन एंड गेट इट क्लैरिफाइड व्हेन यू सिट विद द कस्टमर, ठीक है. The third thing is the work products conform to the standards established for the process, the project and the product. For example, customer ने आपसे documentation का एक certain standard मांगा है, ठीक है. Now you need to make sure whatever you produce, any diagrams that you have produced, they are according to that standard, ठीक है. So there are 3 things that you need to check. सबसे पहली कि requirements unambiguous होनी चाहिए, कोई inconsistencies, errors और omissions नहीं होनी चाहिए. And the final thing is you need to meet the quality standards that you have set for the project of the process. ओवरऑल जो भी आपका स्टैंडर्ड, यू नीड टू कन्फर्म टू दैट, ठीक है जी. और इसका तरीका क्या होता है वैलिडेशन का, ठीक है. जनरली द बिगर कंपनीज हु हैज अ होल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम, उनके अंदर कुछ टीम मेंबर्स होते हैं जो कि बेसिकली रिक्वायरमेंट्स का फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करते हैं, ठीक है. ये जो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज होते हैं इसमें आप करते क्या है, बेसिकली यू गेट दिस होल SRS, आप उस पूरे को पढ़ना शुरू कर देते हैं. एंड वट एवर प्रॉब्लम्स यू आइडेंटिफाई यू नोट देम डाउन, ठीक है. For example, if I am the person who is doing this or conducting this formal technical review, then once I have read the document, I would have noted down all the possible flaws that I identified in this. ठीक है. Normally, the software engineers, the customer users, and other stakeholders, they are part of this thing, this process. Okay. Validation is not only for me as a software developer. It is not only for me as a requirement engineer. ये पूरी मेरी development team के लिए. This is also for the customer और कोई भी जो stakeholders है, it is basically for everybody. Okay जी. And what are the basically what we do when we are validating requirements? We generally ask a set of questions. ठीक है. What are those set of questions? Number 1 is each requirement consistent with the overall objective for the system and product? ठीक है. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है विच इज कन्फ्लिक्टिंग विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है. Now you do not want that in the list of requirements, ठीक है. So whenever you are evaluating each requirement, you need to ask this question कि क्या ये जो requirement है ये मेरे overall जो इस product का objective था उससे conflict तो नहीं कर रही, ठीक है. So this is the first question. The second question that you need to ask is, have all the requirements been specified at the proper level of abstraction, ठीक है. That is, do some requirements provides a level of technical detail that is inappropriate at this stage. अच्छा, ये चीज़ एक हमने डिस्कस की थी कि requirements जब हम लिख रहे होते हैं या जब ये हम elaboration phase के ऊपर वो जितनी भी तरह की हम diagrams बना रहे होते हैं, उस वक्त हम solution के बारे में नहीं सोच रहे होते. हमारा गोल सिर्फ ये है, we want to understand कि what the customer wants, ठीक है. तो वी नीड टू स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स एट द राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन. हमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डालनी है रिक्वायरमेंट्स के अंदर. सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड कि अगर रिक्वायरमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल डली हुई है तो यू नीड टू टेक इट आउट, ठीक है. वाई डू, अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर एक चीज़ को आपने ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है तो आप उसे क्यों ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है. द रीज़न इज़ दैट कि व्हेन यू गो इन डेवलपमेंट फेज और जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, देन एट टाइम्स यू रियलाइज कि जो चीज़ आपने वो लिखी थी या आपने जिस तरह पहले से सोल्यूशन को करने का सोचा था, जो आपने सोल्यूशन का आपने एक जहन में आइडिया बनाया था, दैट इज एक्चुअली नॉट द वे यू विल एक्चुअली डू इट, ठीक है. यू माइट हैव टू टेक अ शॉर्टकट और आपको कोई और तरीके से इस काम को करना पड़े. तो अगर आप ये चीज़ लिख के कस्टमर को पहले ही दे देंगे तो कस्टमर आपसे आके कह सकते हैं जी ये काम आपने तो कहा था आप इस तरह से करेंगे. बेशक काम चल रहा हो लेकिन कस्टमर वुड हैव अ पॉइंट देन टू आस्क क्योंकि जी आपने कहा था ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से क्यों नहीं हो रहा, ठीक है. सो you need to specify requirements at the right level of abstraction. So you need to, whenever you are checking requirements, the second thing that you need to check is that all the requirements are specified at the right level of abstraction or not. Achha ji. The third thing that you need to see, is the requirement really necessary
or does it represent an add-on feature that may not be essential to the objective of the system? अच्छा जी, अब आपको रिक्वायरमेंट्स को जब देख रहे हैं तो ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि ये जो आपने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, ये इज इट एक्चुअली पार्ट ऑफ सोल्यूशन या ये कोई ऐसी एडिशनल चीज़ है जो आपने ऐसी रिक्वायरमेंट्स के अंदर लिख दी है। ठीक है, जिस तरह कस्टमर हो सकता है आपको अपना जब प्रोसेस बता रहा हो तो उसके अंदर उसने कहा हाँ ये हो तो ये भी अच्छा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट दे कैन कम अप व्हेन यू आर गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, नाउ ये जो एक्स्ट्रा उसने चीज़ कही है, दिस इज नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, दिस इज समथिंग विच इज एन एड ऑन एंड एज अ कंपनी यू कैन बेसिकली चार्ज कस्टमर फॉर इट। ठीक है, तो आपकी जो चीज़ एसेंशियल टू योर सोल्यूशन है, यू ओनली राइट दोज इन द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और फोर्थ थिंग इज ईच रिक्वायरमेंट बाउंडेड एंड अनएम्बिगुअस। ठीक है, ये बाउंडेड और अनएम्बिगुअस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी चीज़ बाउंडेड का क्या मतलब होता है कि इट इज़ विद इन बाउंड्रीज। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन process, I want you to include student registration process in the university management solution. ठीक है, if this is a requirement तो this requirement is not bounded, क्योंकि मैंने आपको ना तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कुछ बताया, ना मैंने आपको बताया कि कब के क्राइटेरिया क्या होगा स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन का, कितने दिन तक वो रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, कितने दिन में वो विड्रॉ कर सकते हैं, व्हाटएवर। सो आई हैव नॉट गिवन यू एनी डिटेल्स, दिस इज एन अनबाउंडेड रिक्वायरमेंट, सो यू नीड ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू बी बाउंडेड। जिस तरह एक रिक्वायरमेंट क्या होगी, बाउंडेड रिक्वायरमेंट की एग्जांपल क्या होगी कि फॉर एग्जांपल मैंने जब आपको कहा स्टूडेंट रजिस्टर करा सके, तो आप कहते हैं कि जी स्टूडेंट अपनी रजिस्ट्रेशन के 2 हफ्ते बाद अपनी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह उन्होंने कोर्स के लिए रजिस्टर किया, 2 हफ्ते तक का टाइम है, उसके बाद वो अपनी रजिस्ट्रेशन 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो कैंसिल कर दें तो वो उनको कोई फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं पड़ेगी। नाउ दिस इज अ बाउंडेड रिक्वायरमेंट क्योंकि आई हैव टोल्ड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। ठीक है, लेकिन अगर अनबाउंडेड हो तो यू नीड टू नोट इट डाउन। Does each final question is does each requirement have attribution that is a source noted for each requirement? ठीक है, यानी कि आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये चीज़ आपको किसने बताई थी कस्टमर की तरफ से। क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के पहले फेज जो इंसेप्शन था उसके अंदर जो पहले सेट ऑफ क्वेश्चन हम पूछते हैं वो क्वेश्चन इसीलिए होते हैं कि यू वांट टू आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर्स इन द कस्टमर टीम। एज आई सेड अर्लियर कि कस्टमर में से आपको बहुत से लोग डिफरेंट चीज़ें आके बताएंगे, लेकिन यू ओनली लिसन टू द थिंग्स, और आपको सिर्फ उन बंदों की बातों का ध्यान सुनना है वो एक्चुअली द की स्टेक होल्डर्स, जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या जिनका डिसीजन एक्चुअली मैटर करता है। ठीक है, तो आपको हर रिक्वायरमेंट्स का सोर्स को भी आइडेंटिफाई करना है कि आपको ये किस बंदे ने ये बात बताई है। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 चीज़ें देखी। सबसे पहली कि रिक्वायरमेंट्स आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सेकेंड चीज़ हमने देखी कि रिक्वायरमेंट्स आर शुड बी स्पेसिफाइड एट द प्रॉपर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तीसरी चीज़ हमने देखी कि इज द रिक्वायरमेंट रियली नेसेसरी, जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है क्या वो ज़रूरी भी थी कि नहीं थी। ठीक है, ठीक है, दिस इज वॉज द थर्ड थिंग। द फोर्थ थिंग इज कि रिक्वायरमेंट बाउंडेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर बाउंडेड नहीं है तो अगेन यू नीड टू क्लैरिफाइड। और फिफ्थ थिंग इज कि रिक्वायरमेंट शुड बी एसोसिएटेड टू एन इंडिविजुअल, के किस बंदे ने आपको ये बात बताई है करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने देखा वैलिडेशन करते हुए दीज आर द 5 क्वेश्चंस दैट वी आस्क। अच्छा जी, then what we need to ask, do any requirements conflict with other requirements? This is the thing that we have already discussed कि आप हम जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी जब लिखते हैं उसकी हम सब कैटेगरीज बनाते हैं, उसमें जो सेम या रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं फंक्शनैलिटी वाइज उनको हम ग्रुप कर देते हैं। उस ग्रुप करने का मकसद ये होता है कि वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द कन्फ्लिक्ट्स, और हम वी डोंट वांट एनी कन्फ्लिक्ट्स इन आवर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो जब भी आप रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं यू नीड टू बेसिकली रियलाइज कि ये रिक्वायरमेंट से कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं बढ़ रहा, कोई और काम के अंदर कोई मसला तो नहीं आएगा। अच्छा, द सेवंथ थिंग नाउ इज ईच रिक्वायरमेंट अचीवेबल। ठीक है, इन द टेक्निकल एनवायरनमेंट दैट विल हाउस द सिस्टम ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपने ये जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है ये काम करना पॉसिबल भी है कि नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कोई काम करना पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि जो आपका फॉर एग्जांपल आपने जहाँ पे सोल्यूशन डिप्लॉय करना है, इफ समथिंग इज नॉट पॉसिबल फिजिकली देयर, तो यू नीड टू सी कि यार ये तो काम हो ही नहीं सकता, ये हम कैसे लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, इज ईच रिक्वायरमेंट टेस्टेबल। ठीक है, वंस इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, यू नीड टू टेल कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स लिखी है ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आप उसके डेमो दे दें या आप उसके टेस्ट केसेस रन करें या इंस्पेक्शन करें व्हाटएवर, लेकिन यू नीड टू टेल कि आपकी ये रिक्वायरमेंट टेस्टेबल है कि नहीं है, जो भी आप रिक्वायरमेंट्स लिखते जा रहे हैं। इफ अ रिक्वायरमेंट इज नॉट टेस्टेबल तो आप कैसे कस्टमर को बताएंगे कि मैंने ये काम कर दिया। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप रिक्वायरमेंट्स का रिव्यू कर रहे हैं यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, डज द रिक्वायरमेंट्स मॉडल प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द इंफॉर्मेशन, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम टू बी बिल्ट।
फिर आपने जो रिक्वायरमेंट्स के डिफरेंट मॉडल हमने बनाए हुए हैं, क्या वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल जो यूज केस है, वो जो यूजर्स की इंटरेक्शन दिखा रहा है, क्या वो कंप्लीटली सारी इंटरेक्शंस दिखा रहा है, और कि वो की इंटरेक्शन ऐसी तो नहीं दिखा रहा जो कि एक्चुअली यूजर ना कर रहा हो? तो यू नीड टू लुक एट दैट. और हैज द रिक्वायरमेंट्स मॉडल बीन पार्टीशन्ड इन अ वे दैट एक्सपोजेस प्रोग्रेसिवली मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम. एक और चीज कि जब भी फॉर एग्जांपल आप रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं और ये जो रिक्वायरमेंट की डायग्राम्स भी होती हैं, जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में बढ़ती जाती है. ठीक है, यू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोडक्ट. तो रिक्वायरमेंट्स भी इसी तरह लिखनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाए. सो वी हैव सीन कि देयर आर बेसिकली 10 क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क व्हेन वी आर वैलिडेटिंग रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, और द होल पर्पस इज कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, हम उनके अंदर कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं चाहते. हम चाहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो सही लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन के अंदर लिखी हुई हो. ठीक है, वी वांट ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू बी टेस्टेबल. ठीक है, वी डोंट वांट एनी कन्फ्लिक्ट विद इन द रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, और हम देखना चाहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने मॉडल की हैं वो एक्चुअली सही भी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही हैं या नहीं कर रही. ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ वैलिडेशन. ओके जी, ये जो वैलिडेशन होती है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वैलिडेशन वाला काम है ये करते तो कौन है? बेसिकली इट माइट बी परफॉर्म बाय रिक्वायरमेंट इंजीनियर. ठीक है, लेकिन वंस यू आर श्योर ऑफ समथिंग यू नीड टू गेट इट बैक टू द कस्टमर. ठीक है, यानी कि दिस इज अ टू वे थिंग कि दिस इज फॉर एग्जांपल योर सॉफ्टवेयर टीम. ठीक है, एंड इफ दिस इज द कस्टमर. ठीक है, तो आपने यहाँ पे वो 10 सेट ऑफ क्वेश्चन से सारी रिक्वायरमेंट्स को एवेलुएट किया एंड यू केम अप विद सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू गेट क्लैरिफाइड विद द कस्टमर. ठीक है, तो आप इस प्रोसेस के अंदर कस्टमर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कस्टमर इज द वन हु विल से कि जी हाँ फाइनली जी ये रिक्वायरमेंट्स वैलिडेट हो गई हैं, दिस इज व्हाट आई वांट. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वैलिडेशन के अंदर बेसिकली एवरीबडी इज इन्वॉल्व, ऑल द स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व. जिसके अंदर स्टेक होल्डर कहते हैं आपकी कंपनी भी आ जाती है और कस्टमर भी आ जाता है. ठीक है, और सारे यूजर्स आ जाते हैं. सो वैलिडेशन इज where everybody is involved, और once validation is done तो that document is then वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि असल में आपके पूरे सॉफ्टवेयर बनाने की फाउंडेशन बन जाता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके ऊपर कस्टमर ने शायद साइन भी कर दिया कि हाँ जी मुझे यही चाहिए था. ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन. अच्छा जी, फाइनल फेज ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. ठीक है, विल सी व्हाट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज, और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कहाँ से आ गई. ठीक है, विल सी व्हाट दैट इज. इसका पर्पस क्या है? बिफोर वी एक्चुअली टॉक मोर अबाउट इट, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का पर्पस क्या होगा आपके ख्याल में? हमने अब रिक्वायरमेंट तो लिख ली है. ठीक है, इफ यू गाइज रिमेंबर आई टोल्ड यू आई थिंक इन द बिगिनिंग लेक्चर कि द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डिलेज इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स इज चेंज इन रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, कि कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, आके कहेगा जी आई वांट दिस थिंग टू बी डन दिस वे, नहीं नॉट दिस वे दैट वे. ठीक है, कस्टमर बार बार आएगा और कहेगा जी ये काम मुझे इस तरह से करना था, या मुझे ये वाला काम भी कर दें. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का काम का मकसद ये है, या रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का मकसद ये है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स एक दफा लिख ली, नाउ यू हैव टू मैनेज देम अंटिल यू हैव डिलीवर्ड द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. तो कस्टमर आपके पास आखिरी दिन तक आके आपको कहेगा कि जी इस मेरी प्रोडक्ट के अंदर ये चीज डाल दें. ठीक है, तो यू नीड अ प्रोसेस इन प्लेस जिसके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स आपने लिखी हुई हैं आप उनको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें. ठीक है, तो इसको अब बेसिकली आपने करना क्या है कि रिक्वायरमेंट्स आपने लिख ली हुई हैं, आपने उनको कंट्रोल करना है कि इनके अंदर जो चेंज आए वो चेंज को आप एनालाइज करना चाह रहे हैं कि ये जो चेंज आ रही है ये मेरे प्रोडक्ट को कैसे इफेक्ट करेगी या दूसरे रिक्वायरमेंट्स को कैसे इफेक्ट करेगी. तो यू नीड अ प्रॉपर मैकेनिज्म जिसके बेस के ऊपर आप ये डिसीजन ले सकें. तो हाउ वी एक्चुअली डू इट? सबसे पहला काम जो इसके लिए हमें करना होता है कि हम हर रिक्वायरमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास 10 रिक्वायरमेंट्स थी. ठीक है, तो हमारे रिक्वायरमेंट को कहते हैं जी R1, R2, R3, R4, R5. ठीक है, दिस इज अ वेरी ट्रिवियल वे ऑफ असाइनिंग यूनिक आइडेंटिफायर्स टू रिक्वायरमेंट्स, बट दिस वर्क्स कि आप रिक्वायरमेंट्स को यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर दें. इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी अल्फाबेट्स, व्हाटएवर यू वांट. ठीक है, अच्छा फिर आप रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं? एक टर्म हमने अभी इसी लेक्चर के स्टार्ट में देखी थी, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. ठीक है, कि हम रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट ट्रेसेबिलिटी टेबल्स के अंदर डालते हैं. ठीक है, पहली बात तो ये कि ट्रेसेबिलिटी का क्या मतलब है? ट्रेसेबिलिटी का ये मतलब है कि हम देखना चाहते हैं कि अगर एक रिक्वायरमेंट के अंदर चेंज आएगी तो वो हमारे कौन और किस किस रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करेगी. जो जब आप रिक्वायरमेंट को ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर डालते हैं, हम अभी देखेंगे कि रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट जो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनती है, इट कैन बी समथिंग लाइक कि आपने क्या किया
ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दैट कि फॉर एग्जांपल आपने बना ली, यहाँ पे आपकी आ गई सारी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आपने लिख दिया जी R1 R2 R3 R4 R5 R6, आपने कह दिया जी मेरी सारी 6 की 6 रिक्वायरमेंट्स थी ना, ये मैंने पहले लिख ली हैं, अब आपको पता है ये R1 R2 R5 है, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये ट्रेसेबिलिटी में एक्चुअली करते क्या है कि आपने बनाएंगे डिफरेंट डायग्राम्स, जिस तरह हम जितनी भी डायग्राम्स बनाते हैं, आपने जिस तरह 15 यूज़ केस बनाए, फॉर एग्जांपल हर यूज़ केस को आप एक आईडी यूनिक देंगे, जिस तरह हमने रिक्वायरमेंट्स को यूनिक आईडी दी है, तो इसी तरह हम अपने यूज़ केसेस को भी यूनिक, हम कहते हैं जी रिक्वायरमेंट 1 जो थी ना वो यूज़ केस 1 और यूज़ केस 2 को इफेक्ट करती है, ठीक है, और इसी तरह ये रिक्वायरमेंट 2 जो थी ये यूज़ केस 3, यूज़ केस 4, यूज़ केस 5 को इफेक्ट करती है। इस तरह हम कहते हैं जो 3 थी वो यूज़ केस 6, यूज़ केस 7 और यूज़ केस 8 को इफेक्ट करती है। फिर हम कहते हैं कि जो रिक्वायरमेंट 1 जो थी ये हमारी क्लास डायग्राम को भी इफेक्ट करती है, ठीक है, और हम कहते हैं कि जी ये जो रिक्वायरमेंट 2 थी ये भी हमारी क्लास डायग्राम को इफेक्ट करती है। फिर हम कहते हैं रिक्वायरमेंट 3 जो थी ये शायद सीक्वेंस जो हमारी डायग्राम थी उसको इफेक्ट करती है, सीक्वेंस डायग्राम 1 लेट्स से, ठीक है, या हम कहते हैं जी ये किसी एक स्टेट डायग्राम को इफेक्ट करती है। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर मेरे पास आया, कस्टमर ने आके मुझे कहा कि जी आई वांट रिक्वायरमेंट 1 टू बी चेंज्ड। अब जब मैं अपने सारी रिक्वायरमेंट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई वांट टू नो कि अगर मैं कस्टमर की इस चेंज को एक्सेप्ट कर लूँ तो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस स्टेज के ऊपर मुझे पता लग जाता है कि जी रिक्वायरमेंट 1 चेंज करना मेरे लिए बहुत कॉस्टली है। बहुत कॉस्टली क्यों है? क्योंकि उससे मेरे ये यूज़ केसेस को फ़र्क पड़ रहा है और मेरी शायद पूरी क्लास डायग्राम को फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। और अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिव हो, फॉर एग्जांपल कस्टमर मेरे पास आता है, कहते हैं जी एक वो चेंज लेकर आता है, वो चेंज या तो मैं रिक्वायरमेंट 1 को चेंज करके कर सकता हूँ या रिक्वायरमेंट 3 को चेंज करके कर सकता हूँ, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट 1 जो है वो मेरे 2 यूज़ केसेस और मेरी पूरी क्लास डायग्राम को चेंज कर रही है, और रिक्वायरमेंट 2 जो है 3 जो है वो मेरे 3 यूज़ केसेस और एक स्टेट डायग्राम को चेंज कर रही है, ठीक है। नाउ एज अ रिक्वायरमेंट इंजीनियर और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी पूरी क्लास डायग्राम इफेक्ट हो, ठीक है। और वट एवर इज द केस, वट दिस डज इज दिस गिव्स यू एन आइडिया कि आपकी एक रिक्वायरमेंट से किस चीज़ को फ़र्क पड़ रहा है, आपका सोल्यूशन को कितना इफेक्ट हो रहा है। तो आई एम इन अ बेटर पोजिशन नाउ टू से कि नहीं जी मैं, अच्छा आपका ये काम करना तो है लेकिन आई विल डू इट थ्रू रिक्वायरमेंट 3, आई विल नॉट चेंज रिक्वायरमेंट 1, ठीक है। सो दिस प्रोवाइड्स यू अ मैकेनिज्म to actually analyze and control the impact of change in the requirements, ठीक है। आप बेसिकली रिक्वायरमेंट में चेंज तो आना है और उसका कुछ इम्पैक्ट भी होना है, लेकिन यू वांट टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो दिस इज वेयर दीज ट्रेसेबिलिटी मैट्रिसेस कम इन, कि आपको ये जो ट्रेसेबिलिटी टेबल्स हैं या मैट्रिसेस हैं, इनका फायदा यही होता है कि आप देखते हैं कि किसी एक चीज़ को चेंज करने से मेरी पूरी प्रोडक्ट के ऊपर क्या और कितना इफेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। फिर आप इसके अंदर, ये तो आपके वो डिफरेंट काइंड ऑफ डायग्राम्स आ गई थी, आप इसके अंदर फिर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं जो कि बेसिकली आपकी डिज़ाइन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जिस तरह आपकी आर्किटेक्चर डायग्राम्स हो गई, आपकी डाटा स्ट्रक्चर्स हो गए, जब आपने एक एक क्लास की आपकी ऑब्जेक्ट डायग्राम्स हो गई, वो भी आप हर रिक्वायरमेंट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फिर अनदर थिंग दैट यू एसोसिएट इन और यू मेक इन दीज ट्रेसेबिलिटी मैट्रिसेस इज बेसिकली यू राइट द टेस्ट केसेस फॉर ईच रिक्वायरमेंट। जिस तरह आपने कह दिया जी रिक्वायरमेंट 1 TC1 और TC2 के अंदर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और आप इनका स्टेटस भी फिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर करने जाते हैं तो यू बेसिकली कम एंड लुक एट दिस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। आप देखते हैं अच्छा जी R1 R2 R3 10 आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, सारे के आपने टेस्ट केसेस पास हुए कि नहीं हुए। इफ आप सबके आगे पास लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई और आप जाके कस्टमर को एटलीस्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, यू कैन गिव अ डेमो, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इट कीप्स यू इन्फॉर्म्ड अबाउट कि आपकी एक रिक्वायरमेंट का आपके बाकी सोल्यूशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। दिस इज द पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आपकी, क्योंकि इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द प्रोडक्ट।
ओके जी, सो दैट्स आई थिंक ऑल ऑन रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. व्हाट वी डू इज बेसिकली, आई विल से इट अगेन, दैट वी विल मेक अ रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. टू स्टार्ट ऑफ वी हैव द लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. हम सारी रिक्वायरमेंट्स को यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर देते हैं. जितनी तरह की हमने डायग्राम्स बनाई हैं उनको भी हम यूनिक आइडेंटिफायर्स असाइन कर देते हैं. इसका फायदा क्या होता है, जिस तरह 15 यूज केस है, उन यूज केसेस के नाम लिखे हैं, इट विल बी वेरी लेंथी. तो व्हाट यू डू इज यू बेसिकली असाइन यूनिक आइडेंटिफायर. तो उसका फायदा क्या होगा, आप जहाँ पे उसका अपना पूरा नाम लिखना है, यू कैन जस्ट से UC1, ठीक है, या रिक्वायरमेंट 1 लिखना है, रिक्वायरमेंट 1 बहुत लंबी लाइन हो सकती है, तो यू कैन से R1, ठीक है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ असाइनिंग दीज यूनिक आइडेंटिफायर्स टू ऑल दीज आर्टिफैक्ट्स. अच्छा जी, देन यू हैव, ना सिर्फ आपके पास सिर्फ ये डायग्राम्स होती हैं जो आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर बनाई है, यू कैन ऑल्सो ऐड डिज़ाइन के फेज के अंदर आपने जो चीज़ें बनाई हैं. फॉर एग्जांपल योर डिटेल्ड क्लास डायग्राम्स या आपकी क्लास के डाटा स्ट्रक्चर, आपकी ऑब्जेक्ट डायग्राम्स, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट इन दिस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. अनदर थिंग दैट यू हैव इन दीज टेबल्स, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिसेस और टेबल्स, आर द टेस्ट केसेस. कि आप हर रिक्वायरमेंट का टेस्ट स्टेटस भी लिख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट आपने कर तो ली है, इसको आपने टेस्ट किया, ये चल रही है कि नहीं चल रही. यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड दैट इन ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. सो in requirement management, we basically want to control the impact of changes in requirements, or we want to manage. That's why we call it requirement management, and this is a continuous process. अगर आप इस मैट्रिक्स को ही देखें तो आप ये देखें कि ये शुरू से शुरू हो जाएगी और इट इज बेसिकली एक्टिव थ्रू आउट, अनलेस जब तक आपकी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, यू आर बेसिकली लुकिंग एट दिस ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है. तो दिस इज समथिंग, और वी कैन से द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट टास्क, इट स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट कलेक्टिंग द रिक्वायरमेंट्स एंड इट गोज अंटिल यू हैव टेस्टेड द प्रोडक्ट, ठीक है. So this is a continuous process. Okay जी, so we have covered all these different phases. हमने start किया था, अभी हमने और आज हमने आखिरी stage भी finish कर लिया, which is the requirement management phase, ठीक है. Now because we have been talking about this requirement management or requirement engineering from I guess this is the 4th lecture on requirement engineering. So what we will do is we will have a quick summary and we'll see what we covered in these individual phases starting from inception to requirement management, and we'll see how things come together in the end. ठीक है जी. Okay, before we actually start discussing those individual topics, एक चीज़ जो मैं आपको मैंने पहले भी की थी जब when we started this lecture, कि ये काम ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो, कि आपका इंसेप्शन होगा, फिर एलिसिटेशन होगा, फिर एलिबरेशन होगा, फिर नेगोशिएशन होगा. दिस इज़ नॉट एक्चुअली हाउ इट वर्क्स. ये काम पैरेलल में भी हो सकते हैं. जिस तरह हो सकता है कि आपका इंसेप्शन स्टार्ट हुआ और जिस तरह आपका ये इंसेप्शन चल रहा है, हो सकता है इसके साथ ही आपने एलिसिटेशन भी स्टार्ट कर दिया, आपने एलिबरेशन भी स्टार्ट कर दिया. मे बी यू आर नेगोशिएटिंग एज वेल एंड यू आर मे बी स्पेसिफाइंग टू सम एक्सटेंट एज वेल. सो दीज आर नॉट एसेंशियली सिक्वेंशियल. दीज टास्क कैन और दे एक्चुअली ऑकर इन पैरेलल, ठीक है जी. अच्छा जी, मूविंग ऑन, अब हम जल्दी से इन सबको समराइज करते हैं, इन सारे इंडिविजुअल जो डिफरेंट फेजेस थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की. सबसे पहला इंसेप्शन था. इंसेप्शन के अंदर हमने देखा था हम क्या करते हैं, वी बेसिकली आस्क क्वेश्चंस. किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेट ऑफ क्वेश्चंस हम पूछते हैं कस्टमर से, ठीक है. पहले क्वेश्चन हमें क्या बताते हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन दे आर बेसिकली टू identify key stakeholders. This is the first set of questions है आपके, वो आपको ये किस लिए आप करते हैं, to identify the key stakeholder or identify the key personnel from the customer, ठीक है. और आप अपनी प्रोडक्ट की you get basic understanding of the product. ठीक है. दिस वॉज द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आप इंसेप्शन के अंदर पूछते हैं. जो आपके सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस, ठीक है. इसकी एग्जांपल कैसे है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ERP सिस्टम की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर और सर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर. तो अगर आप सर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर एक सर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर भी डिफरेंट कंपनीज का शायद हो सकता है HR का प्रोसेस टोटली डिफरेंट हो. तो व्हेन वी से कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, तो आप उसके फॉर एग्जांपल HR मैनेजर के पास जाएंगे, आप उससे जाके पूछेंगे, अच्छा जी आपका एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस की क्या पॉलिसी है, अगर लोग लेट होते हैं आप उनकी सैलरी काटते हैं नहीं काटते, ठीक है. अगर छुट्टियां, साल की कितनी छुट्टियां हैं, अगर लोग उससे ज़्यादा छुट्टी करें तो कितनी सैलरी कटती है, ठीक है. तो यू ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर processes. The second set of questions, they are basically for that purpose, ठीक है जी.
जो आपका तीसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, दे आर बेसिकली टू गेज एफिशिएंसी ऑफ इंसेप्शन फेज। आप उसमें कस्टमर से कहते हैं कि जी आई हैव आस्क्ड यू सो मेनी क्वेश्चंस, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू व्हाट आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड, ठीक है। तो इफ कस्टमर हैज टू ऐड समथिंग ही वुड से, और आप उसके अंदर बेसिकली यू ट्राई टू इवैल्यूएट कि आपने जो जो चीजें पूछी हैं वेदर दे वर राइट और रॉन्ग, ठीक है। सो इंसेप्शन कंसिस्ट ऑफ बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यू स्टार्ट वेरी इनफॉर्मली, यू गो एंड मीट द कस्टमर। आप मीटिंग्स में ये जज करते हैं शायद ये बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे रिक्वायरमेंट गैदरिंग के प्रोसेस के अंदर, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप कहते हैं जब भी मैंने जाना है मैंने इससे लाजमी चीज़ें पूछनी है, ठीक है। इन द सेकंड फेज, सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चंस, आप उनसे ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोसेस ओरिएंटेड क्वेश्चंस करते हैं, जब आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली आपने अगर एचआर का इनको मॉड्यूल देना है तो एचआर के मॉड्यूल के अंदर आपकी स्पेसिफिक प्रोसेस जब तक नहीं समझ आएगा आप रिक्वायरमेंट नहीं लिख सकते, तो उस तरह के क्वेश्चन आप करते हैं। थर्ड में आप यू ट्राई टू गेज कि आपने जो क्वेश्चंस पूछे वो सही तरह के भी थे कि नहीं थे, ठीक है जी। दिस इज इंसेप्शन। अच्छा जी, ये सेकंड फेज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर, दैट इज एलिसिटेशन। और एज वी डिस्कस्ड when we covered elicitation कि this is one of the most difficult phase, क्योंकि elicitation के अंदर आप कस्टमर से एक्चुअली पूछते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं कि यार मुझे बताओ ये प्रोसेस तुम कैसे करते हो, ये वाला काम कैसे करते हो, ठीक है। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट। अगर कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा तो elicitation इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो elicitation के हमने दो तरीके पढ़े, ठीक है, कि हाउ यू एक्चुअली elicit रिक्वायरमेंट्स इन अ मोर एफिशिएंटली, और उसमें आप क्योंकि एफिशिएंटली करना तो एक चीज़ है, फिर आप चाहते हैं कि आप पूरे सेट ऑफ डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं कस्टमर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप उन सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो उसके हमने दो तरीके देखे। सबसे पहला जो हमने तरीका पढ़ा था उसको हमने कहा कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। और जो हमने दूसरा तरीका पढ़ा उसको हमने कहा था दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ठीक है। कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर हमने देखा कि हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी बेसिकली गेट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द कस्टमर साइड एंड वी हैव डिफरेंट मेंबर्स ऑफ आवर टीम, वी ट्राई टू सिट टुगेदर इन अ रूम जिसके, और वी असाइन समवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कन्वेनर ऑफ द मीटिंग हु इज बेसिकली कंडक्टिंग द मीटिंग, ठीक है। और हमारा मकसद क्या होता है कि वी से और वी ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और जो भी लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट then others can also add to it, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ये वाला फीचर होना चाहिए, रिपोर्ट्स मंथली जनरेट होनी चाहिए, कोई बंदा कहता है नहीं मंथली नहीं क्वार्टरली भी ऑप्शन होनी चाहिए। सो इसका फायदा क्या होता है कि व्हेन यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप तो देयर इज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट टीम्स, तो आपके कन्फ्लिक्ट भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप डिफरेंट लोगों के ओपिनियन सुनते हैं तो यू गेट क्लैरिटी अबाउट द प्रोसेस, और आप हर जो चीज़ फाइनलाइज होती जाती है यू रिकॉर्ड इट, ठीक है। और रिकॉर्डिंग हमने देखा था डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, यू कैन रिकॉर्ड इट इलेक्ट्रॉनिकली, यू कैन रिकॉर्ड इट ऑन पोस्ट-इट्स एंड स्टार्ट पेस्टिंग ऑन द वॉल, या किसी भी तरह से यू बेसिकली रिकॉर्ड वट एवर इज डिस्कस्ड इन दैट रूम, ठीक है। तो दैट वाज वन मेथड ऑफ एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स, दैट वाज कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जो दूसरा तरीका था वो था क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि वी बेसिकली हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दैट, ठीक है, ठीक है, जिसके अंदर एक तरफ तो हमारी होती हैं कस्टमर की विशेस या व्हाट कस्टमर वांट्स, एक तरफ होती है हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। हम इनके दरमियान मैपिंग जनरेट करते हैं कि कौन सी कस्टमर की विश को पूरा करते हुए हमारी कौन सी टेक्निकल चीज इफेक्ट हो रही है, ठीक है। और इनके दरमियान मैपिंग निकलती है आइदर इट्स पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह हम अपनी प्रोडक्ट को जो हमने सोल्यूशन देना होता है उसको हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस मार्केट के अंदर हैं उनके साथ भी कंपेयर करते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि कस्टमर की विशेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता लग जाता है कि हमें अपनी प्रोडक्ट को कितना इंप्रूव करना है अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में। इस तरह टेक्निकली भी हम अपने कंपेटिटर से जब इवेल्युएट करते हैं यहाँ पे तो हम क्वांटिटीज असाइन कर देते हैं। जिस तरह मुझे पता लगता है कि जी मेरे कंपेटिटर के पास एक इस तरह का पेन है विच इज़ जिसके ऊपर ग्रूव्स भी बनी है, यानी कि होल्डिंग के अंदर भी आसान है, जिसकी शायद डायमीटर भी हाथ के लिए बड़ा अप्रोप्रिएट सा है, तो मैं इसको एग्जैक्ट क्वांटिटीज असाइन कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जी इसका डायमीटर मुझे इतना चाहिए। तो इसका फायदा क्या होता है, एम्बिग्यूटी रिक्वायरमेंट से खत्म हो जाती है, ठीक है। और अगेन क्योंकि इसके अंदर आपने डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो यू गेट रिक्वायरमेंट्स जिसके अंदर कन्फ्लिक्ट को भी आप मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, और एम्बिग्यूटी को खत्म कर देते हैं। सो देयर वर टू मेथड्स दैट वी डिस्कस्ड। फर्स्ट वन वाज कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दूसरा था क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आप क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर आप कस्टमर की विशेस को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के साथ मैप करते हैं।
फिर आप फिर अपनी कस्टमर की विशेष को प्रोडक्ट के साथ भी दूसरे कंपेटिटर्स के साथ देखते हैं कि कंपेटिटर्स के जो इस तरह के सोल्यूशन है वो इन विशेष के हिसाब से कहाँ रैंक करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट अभी सबसे बेहतर है। ठीक है, इसी तरह आप अपनी टेक्निकल जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ भी अपने कंपेटिटर्स के साथ मैच करते हैं कि एग्जिस्टिंग जो सोल्यूशन है वो टेक्निकली क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि यू गेट सम क्वांटिटीज़ और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर से एम्बिग्यूटी को कम से कम कर देते हैं। ओके जी, देन कम्स द एलिबरेशन फेज, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सबसे लंबा फेज था। ठीक है, क्योंकि एलिबरेशन के अंदर वी डू लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एलिबरेशन के अंदर हमने 4 तरह की मॉडलिंग की टेक्निक्स पढ़ी। ठीक है, फर्स्ट वन वाज एलिबरेशन के अंदर हमने 4 तरह की चीजें पढ़ी। द फर्स्ट वन वाज सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग। ठीक है, जो हमने दूसरी टेक्निक पढ़ी दैट वाज class modeling, then we did behavioral modeling, and then we did flow based modeling. सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? वी सॉ के जी यूज केसेस हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, यूज केसेस के अंदर हमने देखा था कि वी ट्राई टू रिकॉर्ड द इंटरेक्शन ऑफ द एक्टर्स और द यूजर्स विद द आर सिस्टम। और एक्टर की हमारी डेफिनेशन क्या है? एक्टर सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं है, एक्टर की हमारी डेफिनेशन क्या है कि एनी अदर हार्डवेयर विच इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ आवर सोल्यूशन, वो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दैट इज एन एक्टर। और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है दैट इज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, दैट इज एन एक्टर। फिर हमने देखा इसके अंदर हमने देखी एक्टिविटी डायग्राम्स। एक्टिविटी डायग्राम्स क्या होती हैं कि यू कैन मेक एक्टिविटी डायग्राम और यू शुड मेक एन एक्टिविटी डायग्राम फॉर यूज केस जब आपको पता लगे कि यूजर के पास ऑल्टरनेटिव आपके एक्स्ट्रा ऑफ एक्शंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिसीजन पॉइंट, उसकी वजह से आपका फ्लो चेंज हो जाएगा, देन यू मेक एन एक्टिविटी डायग्राम। और इसके अंदर हमारे पास और क्या आ जाता है? हमारे पास यूज केस का जो टेक्स्ट है वो भी हमारे इसके अंदर आ जाता है। तो इन सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग we try to record the interaction of the actors with our solution or with the product that we want to make. ठीक है जी। The second thing that we discussed वो थी class based modeling. Class based modeling के अंदर हम क्या करते हैं? हम अपने solution को partition करते हैं within classes, classes identify करते हैं। ठीक है, classes के attributes और operations identify करते हैं। ठीक है, और हम class का model बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसको हमने कहा था CRC की हमने एक टेक्निक पढ़ी थी उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि क्लासेस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जितनी भी हमारी नैरेटिव डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की, ठीक है, इट इंक्लूड्स द यूज केस टेक्स्ट, इसके अंदर प्रोसेसिंग नैरेटिव्स भी आ जाते हैं। हम उन सबको लेते हैं और उन सब की हम ग्रामेटिकल पार्ट्स करते हैं। तो वी आइडेंटिफाई ऑल द नाउन्स, और जितने भी नाउन्स होते हैं वो सारे क्लासेस नहीं बनते। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हो सकता है आपने जितनी रिटर्न डिस्क्रिप्शन पढ़ी उसमें अंदर से आपको 50 नाउन मिल जाए। नाउ दोस 50 नाउन्स ऑल ऑफ देम दे कैन नॉट बी क्लासेस। तो हमने देखा कि देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया, 6 हमारे पास क्राइटेरिया थे। हर नाउन को उन 6 के 6 को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर हम उनके क्लास सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास था रिटेन इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशंस। ठीक है, 6 थे जो हमने पढ़े थे, और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स देयर वर 6 ऑफ देम। Every noun has to satisfy all those 6 criterions. If it does, then we say that that noun is a class. Similarly, जो हमारे noun classes नहीं बनते उनको हम उन classes के attributes बना देते हैं। ठीक है, और operations भी हम कैसे करते हैं कि उसी grammatical parts के अंदर जो हम verbs identify करते हैं उन verbs को हम different classes के साथ associate कर देते हैं और वो उन classes के operations बन जाते हैं। So this is how we identify the classes and their attributes and operations. देन कम्स कि आपकी क्लासेस आपने इंडिविजुअली तो आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन जब आप पूरा सोल्यूशन बनाएंगे तो दीज क्लासेस दे नीड टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, और वो इंटरेक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? यू डू दिस थ्रू CRC मॉडलिंग। आप क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखते हैं और देखते हैं कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए क्लास किस दूसरी क्लास के साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, एंड व्हेन यू हैव द CRC मॉडल्स फॉर ऑल द क्लासेस, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन मेक द ओवरऑल क्लास मॉडल। ठीक है, और ओवरऑल क्लास डायग्राम जिसके अंदर सारी क्लास के आपस के इंटरेक्शन भी आ जाएगा। ठीक, so the third kind of modeling that we covered was behavioral modeling.
बिहेवियर मॉडलिंग के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। नंबर वन वाज, पहली बात तो ये कि बिहेवियर मॉडलिंग होती किस लिए। बिहेवियर मॉडलिंग आपके सिस्टम के बिहेवियर को देखती है कि जब भी यूजर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। उसके अंदर हमने दो तरह की डायग्राम्स देखी। नंबर वन वाज स्टेट डायग्राम्स एंड नंबर टू सीक्वेंस डायग्राम्स। स्टेट डायग्राम हमने देखा कि वी कैन मेक अ स्टेट डायग्राम ऑफ एवरी क्लास, ठीक है। हर क्लास की हम पॉसिबल स्टेट्स बना सकते हैं और जब भी सिस्टम के साथ कोई यूजर इंटरेक्ट करेगा, कोई इवेंट आएगा और वो स्टेट की आपकी जो ऑब्जेक्ट है या आपकी जो क्लास है वो डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान जंप करेगी। तो आप स्टेट डायग्राम के अंदर हर क्लास की पॉसिबल स्टेट्स लिख देते हैं और वो स्टेट्स के दरमियान जिस जिस तरह से ट्रांजिशन हो सकती है किसी इवेंट की बेस के ऊपर, वो ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सिमिलरली हमने देखा कि सीक्वेंस डायग्राम इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन देन द स्टेट डायग्राम्स। वो ना सिर्फ उस क्लास की स्टेट्स की जंप को शो करती है बट इट ऑल्सो शोज कि एक स्टेट के अंदर रहते हुए अगर आप किसी और क्लास से कोई इन्फॉर्मेशन आपको या कोई और फंक्शन किसी और क्लास के अंदर आप जाके कर रहे हैं तो इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज दैट, ठीक है। तो देयर आर टू थिंग्स दैट वी कवर्ड, स्टेट डायग्राम्स एंड सीक्वेंस डायग्राम्स। अच्छा जी, देन अनदर काइंड ऑफ मॉडलिंग दैट वी कवर्ड इन द एलैबोरेशन फेज दैट वाज फ्लो बेस्ड मॉडलिंग और फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। इसके अंदर वी कवर्ड थ्री मेन थिंग्स। नंबर वन वाज DFDs, number two was CFDs, and number three processing narratives, ठीक है। In DFDs we saw, अच्छा, the sole purpose of flow based modeling is to identify the flow of data into our system, how that data is processed and what is the output from our system, ठीक है। यानी कि हमारा कंसर्न इसके अंदर ये होता है कि हमारा सिस्टम में से डाटा कौन सा डाटा आएगा, हम उसे कैसे प्रोसेस करेंगे और यूजर को क्या जाएगा, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ DFD। DFDs के अंदर हमने देखा कि सबसे पहली दैट इज द पर्पस ऑफ फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग। DFDs इज डाटा फ्लो मॉडलिंग, डाटा फ्लो डायग्राम्स यानी कि जो आपकी होती हैं वो DFDs कहलाती हैं। इसके अंदर हमने देखा कि DFDs के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। लेवल 0 से स्टार्ट होती है, यू कैन गो अप टू एज मच लेवल जितना आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इनपुट्स और आउटपुट्स हैं वो आप लेवल 0 पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड दीज इनपुट एंड आउटपुट्स दे स्टे द सेम। और फिर हमने CFDs देखी और इसी तरह हमने प्रोसेसिंग नैरेटिव्स देखी। डिफरेंट तरह की मॉडलिंग के अंदर इस मॉडलिंग का मकसद क्या है कि हम अपने जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए एंड द पर्पस इज दैट वी आर पार्टीशनिंग आवर सिस्टम, ठीक है। सिनेरियो के अंदर हम अपनी पार्टीशनिंग कर रहे हैं यूजर बेस्ड कि यूजर हमारे सिस्टम से किस तरह इंटरेक्ट करेगा, उस बेस के ऊपर पार्टीशनिंग हो रही। क्लासेस के अंदर पार्टीशनिंग इस तरह हो रही है कि आप देख रहे हैं कि मेरा सोल्यूशन किन किन डिफरेंट चंक्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और उसको, ठीक है। इसी तरह बिहेवियर के अंदर आप बिहेवियर वाइज पार्टीशनिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप क्लासेस की डिफरेंट स्टेट्स बना रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इवेंट आएगा तो ये स्टेट्स के अंदर कैसे जंप करूंगा मैं। फ्लो के अंदर आप डाटा की बेस के ऊपर पार्टीशनिंग करते हैं, यानी कि जो आपके पास डाटा आता है उस डाटा को किस तरह आपका सिस्टम प्रोसेस करेगा उसकी बेसिस के ऊपर आप सब प्रोसेसेस बनाते जाते हैं, ठीक है। और यू कीप ऑन गोइंग अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच सब प्रोसेस, ठीक है। सो बेसिक एलैबोरेशन इज द मोस्ट डिटेल फेज और इसके अंदर हम डिफरेंट तरह की डायग्राम्स बनाते हैं। और एक चीज जो मैंने पहले भी कही है आज के लेक्चर में और आई विल से इट अगेन कि इफ अ डायग्राम इज नॉट एडिंग समथिंग यूजफुल टू व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द प्रोडक्ट तो यू डू नॉट नीड टू मेक इट, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक्टिविटी डायग्राम हर यूज केस की बना सकते हैं, लेकिन इफ यू रियलाइज कि देयर इज नो अल्टरनेटिव सेट ऑफ एक्शंस इन अ यूज केस तो यू डू नॉट नीड टू मेक एन एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि हर डायग्राम बिला वजह नहीं बनानी चाहिए, ये शुड बी अ प्रॉपर रीजन व्हाई यू मेक अ सर्टेन डायग्राम। अच्छा जी, देन वी सॉ कि जी निगोशिएशन का फेज आ जाता है। निगोशिएशन के फेज के अंदर मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर हम बेसिकली वी डू 5 थिंग्स, ठीक है। एक्चुअली वी डू 4 थिंग्स और इसके बाद आप कस्टमर से जाके निगोशिएट करते हैं, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को रैंक करते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स का रिस्क एनालाइज करते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स की रिसोर्स एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, और आप यू ट्राई टू रिकंसाइल द कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। यानी कि रिकंसाइल कन्फ्लिक्ट्स में आप क्या करते हैं, आप कस्टमर को बताते हैं यार जो आपने चीज़ें मांगी है ना विद इन दीज रिसोर्सेज वी कैन नॉट डू इट, ठीक है। फिर आप हर रिक्वायरमेंट का रिस्क देखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट को करने से ओवरऑल रिस्क क्या होगा बाकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फिर आप हर रिक्वायरमेंट्स का डेवलपमेंट टाइम और उस पर कितने रिसोर्स लगेंगे वो आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आप रिक्वायरमेंट्स को रैंक करते हैं। व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स तो यू आर इन ए पोजीशन टू टॉक टू कस्टमर कि यार ये जो सारे काम आपने कहे हैं ना ये इतने रिसोर्सेज या इतने टाइम में पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। और हमने ये देखा कि निगोशिएशन इज एन आर्ट, यू नीड टू मैप आउट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी व्हेन यू गो टू द कस्टमर
कस्टमर को आपने इंपॉर्टेंस भी देनी है, लेकिन आपने उसको अपनी बात भी मनवानी है. सो यू नीड very good interpersonal skills to actually negotiate with the customer. ठीक है. तो and before you actually go to negotiation, you need to actually have a very good understanding of the requirements. अगर आपने ये 4 काम नहीं किए होंगे तो you will not be in a better position to negotiate with the customer. Then comes the specification phase. Okay, there is a spelling mistake in this slide. You know it should come here, this I. So next is specification phase. Specification के अंदर हमने देखा कि what we do is we have done so many things about requirements. जिस तरह हमने requirements को elicit किया है, हमने requirements को collaborative requirement gathering के अंदर और quality function deployment के अंदर requirements लिखी हैं, ठीक है. और फिर हमने क्या किया है कि फिर हमने requirements को elaborate किया डिफरेंट तरह की मॉडलिंग करके, फिर हमने कस्टमर से negotiate करके फाइनली requirements भी निकाल ली. अब स्पेसिफिकेशन के अंदर हम एक फाइनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं SRS. ठीक है. SRS stands for Software Requirement Specification Document. ठीक है. तो ये जो SRS डॉक्यूमेंट होता है, दिस इज द मेन वर्क प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन. ठीक है. कि फाइनली आपने जो रिक्वायरमेंट्स लिखी थी टेक्सचुअल फॉर्म में और जो भी आपने फिगर्स बनाई थी, यू ट्राई टू पुट देम इन अ डॉक्यूमेंट और आप वो कस्टमर से कहते हैं जी ये SRS डॉक्यूमेंट है. ठीक है. अब ये जो SRS डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है? इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप कस्टमर को दे रहे हैं, आप उसको सर्वर्स दे रहे हैं और ये आपके सोल्यूशन का पार्ट है, तो दैट इज एक्चुअली इंक्लूडेड इन दिस SRS. अगर कस्टमर को आप कोई कम्युनिकेशन दे रहे हैं, आपने उसको इंटरनेट भी प्रोवाइड करवाना है, तो दैट इज पार्ट ऑफ दिस SRS डॉक्यूमेंट. सो एवरीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, इट बिकम्स पार्ट ऑफ दिस SRS डॉक्यूमेंट. और दिस SRS डॉक्यूमेंट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. कि आपको दिस इज एक्चुअली ये बुनियाद है आपके सॉफ्टवेयर की. ठीक है. तो द बेटर इट इज, द बेटर सॉफ्टवेयर वुड बी मेड इन द एंड. ठीक है जी. Then comes the validation phase. Validation के अंदर हम क्या करते हैं? Validation के अंदर we ask basically 10 different questions हर requirement के लिए. और हमारा purpose क्या होता है? Validation के अंदर as a software development company हम क्या क्या करना चाह रहे हैं? हम requirement चाहते हैं जो कि unambiguous हो, सबसे important चीज़. ठीक है. फिर हम requirements में conflicts नहीं चाहते, no conflicts in the requirements. ठीक है. फिर हम अपने requirements को चाहते हैं कि they should conform to overall objective. ठीक है. जो आपके प्रोडक्ट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, हर रिक्वायरमेंट को उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है. फिर आपकी रिक्वायरमेंट जो है उसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी रिक्वायरमेंट इनकंसिस्टेंट है, यानी कि एक रिक्वायरमेंट आप एक बात कर रहे हैं, दूसरी रिक्वायरमेंट दूसरी बात कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर सोल्यूशन. तो इन वैलिडेशन यू बेसिकली रीड एवरी रिक्वायरमेंट और आप हर रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद उसमें से इस तरह की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फाइनली यू टेक इट टू द कस्टमर और आप कस्टमर से कहते हैं कि जी दिस इज आप अपनी अच्छा वैलिडेशन का तरीका क्या होता है? यू बेसिकली डू फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज. ठीक है. और आपकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई भी ओमिशंस निकलती हैं, ठीक है, कोई एरर्स हैं, आप वो सारे आइडेंटिफाई करते हैं और आप ये चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं यू टेक इट टू द कस्टमर और कस्टमर से कहते हैं ये प्रॉब्लम है, इनको जरा क्लियर कर दें. ठीक है. वंस द कस्टमर सेज ओके जी ये हो गया, एंड व्हेन बोथ एज अ ग्रुप एक्चुअली डिसाइड कि जी ओके दिस इज द फाइनल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, देन कम्स द साइन ऑफ स्टेज जहां पे कस्टमर एक्चुअली अप्रूव कर लेता है. कस्टमर कहता है जी दिस इज द फाइनल थिंग्स दैट यू हैव टू गिव मी, यानी कि जब आपने मुझे प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो मैं इसके साथ मैच करूंगा. दिस इज द SRS डॉक्यूमेंट. ठीक है. तो एट वैलिडेशन स्टेज यू कैन बेसिकली डू SRS साइन ऑफ एज वेल, जहां पे कस्टमर कह देता है कि ओके दिस इज समथिंग दैट आई वांट. ठीक है. देन कम्स द फाइनल स्टेज जिसको हमने रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कहा था. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट मैंने आपसे कहा था इट बेसिकली गोज ऑन. ये स्टार्ट होता है जब आप इंसेप्शन करते हैं और ये चलता रहता है जब तक कि आप प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर नहीं कर देते. ठीक है. और ये हम करते कैसे हैं? वी मेक रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. और ये एक मैट्रिक्स भी हो सकती है, एक टेबल भी हो सकता है, मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं. हमने देखा था कि एक टेबल के अंदर हम रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, फिर हम सारी ये जो हमने फिगर्स बनाई थी, यूज केसेस, डाटा फ्लो डायग्राम्स, क्लास डायग्राम्स, फिर हम इसके अंदर डिजाइन डायग्राम्स भी डाल सकते हैं और उससे एक बाद हम टेस्ट केसेस भी लिख सकते हैं कि एक रिक्वायरमेंट को हम टेस्ट कैसे करेंगे, उसका टेस्ट स्टेटस भी आ रहा होता है. सो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन रिक्वायरमेंट्स. यानी कि जब कोई चेंज आई तो यू यूज दिस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी टू आइडेंटिफाई कि इस रिक्वायरमेंट को चेंज करने से मेरे बाकी सोल्यूशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. ठीक है. तो दैट्स व्हाई यू यूज दिस रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. सो वी हैव सीन दैट द रिक्वायरमेंट, पहली बात तो ये है कि व्हाई डू वी
कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वी वांट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर। इसी तरह वी वांट अ सिस्टमैटिक वे ऑफ गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यू हैव सीन कि द प्रोसेसेस दैट वी हैव सीन स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेप्शन एंड फिनिशिंग एट रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, दे बेसिकली प्रोवाइड अस विद द टूल्स एंड मैकेनिज्म एंड मेथड्स, ठीक है, और अ प्रोसेस टू फॉलो, जिसके अगर हम इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें तो वी विल गेट a list of requirements which will be unambiguous, which will be consistent, and which will have no conflicts. ठीक है? So understand the importance of collecting requirements in a systematic way, and this is all from requirement engineering in this course of software engineering 1, and inshallah in the next lecture we will start with a new topic. Assalamu alaikum.